अच्छा, so let's start. दूसरी साइड पे I've opened the board as well, जिसके ऊपर सारे हमने notes लिखे हुए chemical bonding के. Starting with this one, कि you have uh, this is fullerenes. पहला question ही fullerenes के ऊपर है. ये हमने कहाँ पे किया था? मैंने थोड़ा सा explain किया था when we were doing giant covalent structures. So I'm just going to quickly show you where we did this. ये तो ionic इधर कहीं इसके आगे, ठीक है? We did giant covalent structures. So we talked about diamond, we talked about graphite. कि graphite में किस तरह carbon is only bonded to 3 atoms and the fourth electron is delocalized. And इसके अंदर very briefly we talked about these things. We talked about मैंने थोड़ा सा show किया था कि graphite की जो sheets होती है ना, the sheets of graphite. And let me also show you here कि पहले मैं graphite थोड़ा सा explain कर दूं दोबारा. In graphite, what you had was that carbon was only bonded to 3 atoms. Sheet-like structure hota tha, and it was completely flat. And the fourth electron was delocalized. It was conducting electricity. So there would be layers of graphite stacked on top of one another, or beach mein na unke there would be very weak intermolecular forces, very weak van der Waals forces. जिसकी वजह से the structure was very very slippery. Uh, उसके बाद what we did was कि I told you कि although ये चीजें course में थी, I told you okay, what you can do is you can have graphite sheets. This is graphite sheets. If you're able to take out one sheet, that's called graphene, and that's called graphene. Or graphene की जो sheets है ना, they can be converted into tiny structures, nanotubes, atomic level के ऊपर they can be converted into ball-like structures. वो इसी तरह था जिस तरह पेपर को आप बीच में से कॉपी में से निकालो और उसके आप प्लेन्स भी बना सकते हो, उससे डिफरेंट चीजें बना सकते हो. तो और स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती थी. फॉर एग्जांपल अगर पेपर को रोल कर दो ना तो इट बिकम्स वेरी स्टिफ, इट बिकम्स वेरी हार्ड. सो द प्रॉपर्टीज चेंज अकॉर्डिंगली. ये सारों को याद है हमारा इज ये सारा याद है, ये हमने डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है? अच्छा, सो दिस वन के they're saying in the C60 fullerene how many other carbon atoms is each carbon atom bonded to. तो आप इसको गौर से देखो. And remember कि it's the same graphite structure. The same graphite structure. In graphite, each carbon atom is bonded to 3 carbon atoms. जो चौथा electron होता है, that is not involved in bonding. So how many carbon atoms is each carbon atom bonded to? The answer to that is 3 carbon atoms. The fourth electron is delocalized and it would be conducting electricity. Amanullah, is this clear? Mass clear है? Yes, sir. अच्छा, then he's saying कि ये हम कर लेते हैं. Fullerene has a relative molecular mass of 840. How many carbon atoms are there in one molecule? तो आपको पता है कि कार्बन की जो मास होती है ना periodic table में, that's 12. तो अगर उसकी मास फुलरीन की 840 और उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, तो how many carbon atoms would it have? आप उसको 12 से डिवाइड करो and the answer comes out to be 72. They're going to be 72 carbon atoms in this fullerene जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे. अच्छा, then is this clear? Faraz, is this clear? Yes. Achha, next one is fullerenes are soluble in liquid hydrocarbons such as octane. The other solid forms of carbon are insoluble. Describe how you could obtain crystals of fullerenes from soot, which is a mixture of fullerenes and other solid forms of carbon. Okay? So let me explain this question. This question is very simple. Okay? But they're using terms which are making it difficult. So soot आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है? तो he's saying soot, which is a mixture of fullerenes. तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? There's fullerenes and other solid forms of carbon. अब other solid forms of carbon क्या होते हैं? Graphite होता है, ठीक है? डायमंड होता है, खैर जो भी है, डायमंड होता है. अगर और नैनो ट्यूब्स हो सकती हैं, ठीक है, हमने वो पढ़ा था. तो these are your other solid forms. Now anyways, these are your other solid forms. और उसने कहा कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. अच्छा, उसने कहा कि फुलरीन जो है ना वो सॉल्युबल है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में,
और वो जो अदर सॉलिड फॉर्म्स है ना, दे नॉट सॉल्युबल। किसके अंदर? ऑक्टेन के अंदर। ऑक्टेन जो होता है ना, दैट्स योर पेट्रोल, हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है, ठीक है। सो सो दिस डिसॉल्व्स इन ऑक्टेन, एंड द अदर वंस, ये जो है, दे डोंट डिसॉल्व इन ऑक्टेन। तो जल्दी से बताओ किस तरह सेपरेट करोगे? इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन। एनीवन? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? मानुला सूट के साथ पहला काम क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? रिमेंबर, फुलरीन्स को एक्सट्रैक्ट करना है, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड। सर ऑक्टेन किसको कहते हैं? वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है ना। ऑक्टेन खुद सोचो ना, ये रियल वर्ल्ड लाइफ में ऑक्टेन पेट्रोल पंप्स पे लिखा होता है ना, हाई ऑक्टेन पेट्रोल, यस। ठीक है। तो एक लिक्विड है, अभी मतलब ना भी पता हो, उससे लिखा हुआ है कि इट्स अ लिक्विड। तो अहमद, पहला काम क्या करोगे? फुलरीन्स को एक्सट्रैक्ट करना है। ये मतलब सेपरेशन टेक्निक से रिलेटेड है कि आपके पास सूट है, ये सारी चीजें, कार्बन की जितनी भी फॉर्म्स है वो सारी इसके अंदर है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज कि आप उसको उसके अंदर मिक्स करो। नंबर वन इज dissolve soot in octane. तो सिर्फ कौन सी चीज डिसॉल्व करेगी? सिर्फ और सिर्फ फुलरीन्स डिसॉल्व करेंगे, बाकी वो किस तरह रिमूव करोगे? ये डिसॉल्व ही नहीं करेंगे, ये सॉलिड होंगे। तो हाउ वुड यू रिमूव देम? डिकेंटिंग। डिकैंटिंग भी कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल सॉलिड, ये मतलब डिसॉल्व नहीं हुए, सॉलिड पड़ा हुआ, जैसा सैंड पानी में पड़ी हुई है, फिल्टरिंग। तो सिंपल फिल्ट्रेशन करो, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इज filter to remove other solid forms. और क्रिस्टल्स बनाने हैं फुलरीन्स के, यानी अब आपके पास सोल्यूशन है जिसके अंदर पहले तो आपने उसको ऑक्टेन के अंदर मिक्स किया, एग्जैक्टली उसी तरह जैसा सैंड और सॉल्ट को ना, सैंड और NaCl को आप पानी के अंदर मिक्स कर रहे हो, तो NaCl तो डिसॉल्व कर जाएगी, सैंड नहीं करेगी, या अदर सॉलिड फॉर्म्स डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो उनको तो आपने फिल्टर आउट करके रिमूव कर दिया। अब आपके पास पीछे ना फुलरीन्स का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, एंड यू हैव टू फिगर आउट समहाउ कि हाउ वुड यू क्रिस्टलाइज इट। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? इवेपोरेट करो, evaporate the solution to saturation point, या simply उसने, या simply evaporate the solution, ठीक है, that's it। उधर ही हम कहानी खत्म कर देते हैं, तो पीछे आपको वो मिल जाएगा, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे फुलरीन्स के। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मानोला, इज दिस क्लियर? माज, फराज, Yes, ये sir. क्लियर है? हेलो? जी सर। जी सर, ये थर्ड स्टेप सर रिपीट कर सकते हैं सर? वो थर्ड स्टेप ये था ना कि मतलब ये था ना कि आपने ऑक्टेन लिए, अच्छा आपने ऑक्टेन ऑक्टेन लिए, और ऑक्टेन के अंदर ना आपने फुलरीन्स को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो फुलरीन्स जो है वो तो डिसॉल्व कर गए सारे के सारे, ठीक है, वो बीच में सोल्यूशन में मिक्स हो गए। जो ये अदर सॉलिड फॉर्म्स नहीं है, ये सारे नीचे बैठ गए, जिससे वो सैंड नहीं बैठ जाती, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, उसने कहा है वो दे डोंट डिसॉल्व। तो आपने फिर इनको फिल्टर आउट कर दिया, पीछे आपके पास रह गया फुलरीन का सोल्यूशन। तो नमक है पानी के अंदर, नमक सॉल्युबल होता है ना, NaCl सॉल्युबल होता है, तो आप उसको किस तरह रिमूव करते हो पानी में से? पानी को एवापोरेट कर दो, बात खत्म। तो वही चीज आप ये करो कि ऑक्टेन को एवापोरेट कर दो, तो पीछे क्या रह जाएगा? फुलरीन रह जाएगा। ये क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन। सर हाँ,
सर सूट का क्या मतलब होता है? उससे बताया हुआ है सर क्वेश्चन। एक्चुअली मैं ना लेट ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, नहीं क्वेश्चन के अंदर देखो ना, सूट वो क्या कह रहा है, सूट विच इज अ मिक्सचर ऑफ फुलरीन्स एंड अदर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कि कार्बन की जितनी भी फॉर्म्स है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, नैनो ट्यूब्स जो हमने पढ़ी थी, उन सब का मिक्सचर है। तो ये पूरी चीज सूट है। ओके सर। ठीक है, चलो अगला वाला। अच्छा, विच सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या आंसर है इसका? क्विकली, ये तो जल्दी आना चाहिए। ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स सच एज पोटेशियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस ठीक है, इन्हीं दो चीजों का, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, डीलोकलाइज्ड और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के एक एक मार्क्स ओके। मिलेंगे। ठीक है, सेंटेंस लिख लेना कि मेटल्स हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बात खत्म। Acha, ओके। the mixture of fullerene and potassium has to be stored out of contact with air. They are substances in unpolluted air which will react with potassium. Name 2 potassium compounds which could be formed when potassium is exposed to air. तो मुझे ये ऑल्दो हमने नहीं किया, लेकिन मुझे बताओ कि एयर के अंदर कौन सी 2 एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत, मतलब एयर की कॉम्पोजिशन किसको पता है? सर नाइट्रोजन 72%, 78%। 78 सॉरी, और हाइड्रोजन नहीं, 20, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन 21। 21%। हाँ जी। थर्ड मोस्ट अबंडेंट जो होती है वो आर्गोन होती है। पीछे सिर्फ 1% रह गया। तो वो जो आर्गोन और कार्बन डाइऑक्साइड और वो सारी चीजें जो है ना, वो इस 1% के अंदर शामिल होंगी। तो अगर पोटेशियम पड़ा हुआ है, तो पोटेशियम जो है मेटल है, तो या तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना सकता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा, K+1 होता है, O-2 होता है, तो K2O होगा। ठीक है, या फिर वो नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, तो K+1 होता है, N ग्रुप 5 में होता है, -3 होता है, तो इट वुड बी K3N। चलो आगे चलते हैं कि राइट एन इक्वेशन बिटवीन लिथियम एंड नाइट्रोजन, और वो कह रहे हैं लिथियम नाइट्राइड बन रहा है। इक्वेशन वाला काम छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पे रहते हैं। इसके बाद हमने पढ़नी इक्वेशन दी है। एनीवेज, लिथियम और नाइट्रोजन का ना वो बनाना है डॉर्डन क्रॉस डायग्राम। हाउ वुड यू मेक इट? पहले तो लिथियम को कर लेते हैं। लिथियम इज गोइंग टू हैव, इट्स गोइंग टू हैव 2 शेल्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, लिथियम के पास। So that is going to be, अब मुझे तो लिथियम ग्रुप 1 में होता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। और ये आयोनिक बॉन्ड होगा क्योंकि लिथियम मेटल है, ग्रुप 1 में है। ठीक है, एंड द अदर वन इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज डेफिनेटली अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन के पास, अच्छा नाइट्रोजन के पास जो, वन सेकेंड, अच्छा, सो नाइट्रोजन हैज टोटल 7 होते हैं, लेकिन ग्रुप 5 में होता है, एंड दैट्स नाइट्रोजन। अच्छा, मैंने फिर वो सिंबल्स गलत यूज किए, इसका ख्याल रखना। क्वेश्चन के अंदर उसने सिंबल्स दिए हुए थे, लिथियम का क्रॉस होना चाहिए था, उसके डॉट्स होने चाहिए थे। वो करेक्ट कर लेना। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, so this is in group 5, this one is in group 1। अब लिथियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो कितने गेन करेगा? नाइट्रोजन। 3। ठीक है, नाइट्रोजन it's going to gain 3 electron, gains 3 electrons। तो end result would be कि इसका आउटर शेल चला गया और उसका आउटर शेल उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, वो फुल हो गया। जो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए ना, वो डॉट्स में होने चाहिए। इसका क्या चार्ज होगा? +1। और इसका क्या चार्ज होगा? -3। माइनस।
अब एक काम रह गया, वो क्या है? मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, वो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, रिमेंबर दैट, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। आसान काम है कि इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, और इसका जो चार्ज है 1 है तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, वो उसने खुद ही कह दिया कि NF3 बन रहा है। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में, ये हमने पढ़ा था, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 5 और ग्रुप, तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इधर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या करते थे कि आप फिगर आउट करते थे कि जी नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5, तो ग्रुप 5 का मतलब है कि वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा। कोवलेंट बॉन्डिंग में किस हम पता करते थे कौन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? लास्ट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको चाहिए 3 है, ये ग्रुप 5 में इसके पास 5 है आउटर शेल में, ठीक है, इट्स गोइंग टू मेक 3 बॉन्ड्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते थे ना उतने बॉन्ड्स बनाता था। और फ्लोरीन ग्रुप 7 में, ग्रुप 7 का मतलब उसके पास 7 है आउटर शेल, वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स गोइंग टू मेक जस्ट 1 बॉन्ड। तो मैंने कहा था हमेशा डॉट एंड क्रॉस जब आप कोवलेंट का कर रहे हो ना, तो पहले वो स्टिक डायग्राम बना लो, वो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो एन ने 3 बॉन्ड्स बनाने, फ्लोरीन ने एक ही बनाना है, तो एक फ्लोरीन ने बना दिया, एक और फ्लोरीन ने बना दिया, एक और फ्लोरीन ने बना दिया। तो आपने ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपने स्केच करना है कि बीच में एन होगा पड़ा हुआ, और ये साइडों पे देयर इज गोइंग टू बी फ्लोरीन्स, ठीक है। तो इसको उठा के अच्छा 3 फ्लोरीन्स होंगे, और एन बीच में होगा, एन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, तो एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, और एक उधर बनाया। तो आपने जो ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया उसको फॉलो करना है। याद है, क्लियर है सारों को? जी सर। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है कि सारों के इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिया करो। फ्लोरीन के और कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने चाहिए? 6। ठीक है, मतलब सारों के 8 पूरे कर दो, इसके 6 होंगे। इसके भी खैर वो फिर से मैंने डॉट, अच्छा इस दफा मैंने सही बनाया। अच्छा, इसके भी 8 पूरे होने चाहिए। नाइट्रोजन के कितने मिसिंग है? 2। ठीक है, नाइट्रोजन के 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, सो दिस इज द कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है इसके, यू आर बीइंग आस्क्ड के लिथियम नाइट्राइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो आयोनिक है। आयोनिक हमने यही पढ़ा था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे पॉजिटिव आयंस होंगे, ढेर सारे नेगेटिव आयंस होंगे, और वो बस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, ठीक है। वो कहानी उनकी मतलब एक एंडलेस स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, सो इट फॉर्म्स अ जायंट आयोनिक लैटिस। अच्छा, विद स्ट्रॉन्ग आयोनिक, अच्छा विद स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स, ढेर सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, NF3 जो है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल, उसका मतलब है कि एक NF3 का मॉलिक्यूल होगा, तो मैंने बताया था कि वो बस वहीं पे खत्म हो गया, और ये चार्ज भी नहीं होता, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि किसी ने इलेक्ट्रॉन ना तो लूज किया ना गेन किया। तो अगर एक और NF3 का मॉलिक्यूल होगा तो उनके बीच में कोई खास अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। उधर तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में there won't be any strong attractive force। तो पहले आप स्ट्रक्चर का बताओगे कि NF3 is simple molecular, with weak अच्छा with weak intermolecular forces between molecules। Is this clear? मुर्जा क्लियर है? मास क्लियर है? सर हाँ, जी सर हमें ये कैसे पता चलता है कि मतलब ये सिंपल मॉलिक्यूल है, मतलब लैटिस इसका जायंट है कि या मतलब आप नहीं समझ देखो, रहे मेरा क्वेश्चन? वो तो वो सिंपल है ना कि मेटल और नॉन मेटल होंगे,
मेटल और नॉन मेटल होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? आयोनिक बनेगा, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। और अगर खाली ओके नॉन मेटल्स होंगे तो वो फिर शेयरिंग शुरू हो जाएगी और फिर कोवलेंट होगा। क्लियर है अहमद? ओके सर। ठीक है, मतलब कोवलेंट के अंदर शेयरिंग का हमने यही कॉन्सेप्ट सारा पढ़ा था ना, कि कहाँ पे पढ़ा था, कि जब आपके पास ये जो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थी, हाँ, तो जब आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं तो उनकी वो सारे इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बीच में फंस जाते हैं, ना वो उधर जा सकते हैं ना वो इधर जा सकते हैं, क्योंकि ये भी गेन करना चाह रहा है, ये भी गेन करना चाह रहा है। तो शेयरिंग शुरू हो जाती थी अगर खाली नॉन मेटल्स होते हैं, और वो फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अनचार्ज्ड होता है, दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो भी अनचार्ज्ड होता है। तो अगर चार्जेस ही नहीं है तो वो एक दूसरे को खास अट्रैक्ट भी नहीं करते, तो वो फिर गैसेस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये वो ग्राफाइट, और उससे सिंपली क्या है कि ये बताओ कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर व्हाई ग्राफाइट इज सॉफ्ट एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले बताते हैं कि सॉफ्ट क्यों है। कि ग्राफाइट के अंदर ग्राफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि कार्बन, एवरी कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है। अगर वो चौथा बॉन्ड आपस में बना देते हैं ना, तो फिर तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल टाइट हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड sheets of graphite have weak van der Waals forces. The sheets of graphite have weak intermolecular forces कर दो, या have weak van der Waals forces. So they can slip and slide easily. और अगला पॉइंट होगा कि ग्राफाइट हैज delocalized electrons, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं रहा होता। सर हम डीलोकलाइज की जगह फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, स्टेट टू यूजर्स, इट इज सॉफ्ट। क्या यूज होता था ग्राफाइट का अगर वो सॉफ्ट होता था? पेंसिल लिड। हाँ, वो भी हो सकता है कि वो लेयर स्लाइड होती रहती है तो कॉपी के ऊपर ना लाइन बनती रहती है। लेकिन बेहतर ये इसका कम मैंने मार्किंग स्कीम में देखा है, तो इससे बेहतर है ड्राई लुब्रिकेंट्स यूज करो, ठीक है, वरना वो ठीक है और एक्सेप्टेबल भी है। अच्छा, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स मतलब बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। यस सर, आप जरा ये ड्राई लुब्रिकेंट का फिर से समझा दें इसका मतलब। देखो, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है ना, तो बड़ा स्लिपरी होता है ग्राफाइट। मतलब ये लेयर्स जो है ना, ये इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करो ना, स्लाइड कर जाती है। तो ड्राई लुब्रिकेंट्स होते हैं। नॉर्मल लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं कि या ऑयल, ठीक है, जो आप ऑयल वगैरह यूज करते हो बाइसिकल चेन वगैरह के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली चीज़ों को गंदा कर देती है, और इतना कोई वो यस। मतलब निशान कपड़ों में लग जाता है, डिफरेंट चीज़ें। मैंने इसका एग्जांपल एक दिया था कि मैंने कहा था कि अगर आपकी जैकेट की जेब खराब हो जाए तो उस पर तुम ऑयल लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, क्योंकि वो तो कपड़े ही गंदे हो जाएंगे ना सारे। तो यस। तो जैकेट की जिप जो है ना, उसको अगर स्मूथ करना है ना ताकि वो फंसे ना, व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन उसके ऊपर पेंसिल रब कर दो। मतलब ग्राफाइट पेंसिल लेड के अंदर ना ग्राफाइट होता है, तो अगर वो रब करोगे ना तो वो बड़ा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ग्राफाइट के अंदर ना वो शीट्स होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगी, तो इसलिए वो इट्स गोइंग टू मेक इट वेरी स्लिपरी। इज दैट क्लियर? यस। और ये वैसे करके देखना, ये जब भी कोई, ये मतलब आइंदा से ना, कभी भी आपकी जिप
जो है ना किसी जैकेट वगैरह की कभी भी स्टक हो ना उसके ऊपर बस पेंसिल या स्मूथ करने ना उसे बिल्कुल ताकि वो आराम से ऊपर नीचे मूव करे, तो पेंसिल उसके ऊपर रब करना शुरू कर दो. अच्छा, नेक्स्ट वन. Silicon 4 oxide also has a macromolecular structure. Describe the macromolecular structure of silicon 4 oxide. तो किधर है हमारा macromolecular structure जो हमने यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन दी थी, और मैंने बताया था कि सिलिकॉन 4 ऑक्साइड और ये डायमंड का स्ट्रक्चर ना एक ही जैसा है. और रिमेंबर, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क रखना है. जब वो स्ट्रक्चर की बात करता है तो वो अरेंजमेंट वगैरह की बात कर रहा होता है. जब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता है तो इज टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. तो रिमेंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के अंदर ना डिफरेंस है. अच्छा, एनीवेज, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता था? टेट्राहेड्रल होता था. कहीं कहाँ लिखा हुआ हमने? ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है. दो दो थी अरेंजमेंट्स, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स के पिरामिड टाइप होता था और वन बॉन्ड वाज ऑन टॉप ऑफ इट, और एंगल्स जो थे 109.5 थे. तो सिलिकॉन 4 ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमने नीचे ड्रॉ किया था, और मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज आर सेम एज डायमंड. बस स्ट्रक्चर में एडिशनल चीज ये थी कि हर सिलिकॉन जो है ना दैट्स बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए दोबारा सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है. सिलिकॉन फिर अपने 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए दोबारा ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है. तो दैट्स द एडिशनल थिंग. तो डिस्क्राइब द मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड. तो एक ही मार्क है तो उस पर तो ज्यादा बातें लिखने की जरूरत भी नहीं है. टेट्राहेड्रल लिख दो, या फिर आप लिख दो कि बॉन्ड एंगल्स जो है 109.5 डिग्रीज है. और अगर मजीद लिखते हैं तो फिर वो बता दो कि ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन. सर, हाँ, टू 4 ये ऑक्सीजन. अगर हम सिर्फ आखिरी लाइन लिखते हैं और बाकी ऊपर वाली ना लिखे तो कौन सी आखिरी मार्क्स लाइन? मिल जाए. कौन सी ये आखिरी? लिखा जाए सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन. इन सारों में से एक बात लिख दो. सही. So each silicon is bonded to 4 oxygens and each oxygen is bonded to 2 silicons. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डायमंड सिलिकॉन हैव इन कॉमन. तो रिमेंबर, उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही कॉमन होती है क्योंकि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्योंकि सारे बॉन्ड्स बन रहे हैं, कोई भी, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते. तो एनी टू आउट ऑफ दीज. So that's the property of high melting points, इसलिए कि वो इतने ज़्यादा bonds हैं कि it's going to take it's going to be very difficult to break it. और हर डायरेक्शन में बॉन्ड है, ये नहीं है कि वो अलग अलग लेयर्स बना रहे हैं. ये क्लियर है सारों को? पिछला अमानुल्लाह क्लियर है? अहमद क्लियर है? मुर्तजा? जी सर. अच्छा. जी अच्छा, नेक्स्ट वन इज आयोनिक लैटिस. आयोनिक लैटिस है कि पॉजिटिव आयन होते हैं जो बना हुआ है सामने, ठीक है. तो उससे क्या एक्सप्लेन करो इसे. तो इट्स अ रेगुलर अरेंजमेंट. lattice is a regular arrangement of particles, लेकिन ionic lattice है of positive ions and negative ions. So that is what a lattice is. अच्छा, in this lattice the ratio of positive ions to negative ions is 1:1. In the lattice of a different ionic compound, the ratio of positive ions to negative ions is 1:2. Explain why this ratio varies in different ionic compounds. रेशियो चेंज क्यों होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का? क्या वजह होती है? कौन बताएगा? अट्रैक्शन की वजह से. नहीं, वो भी हमने किया भी था. ये भी हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाया था ना किसी का, इधर पीछे ही किया था. हाँ, ये वाला. ये रेशो क्या था? लिथियम और नाइट्रोजन का रेशो क्या था? 3:1 था ना? क्यों था? मतलब हमने लिथियम को 3 से मल्टीप्लाई किया था ना. तो उसकी वजह क्या जी थी? सर. उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट वो 3 थे खाली, but it was losing 3 electrons and this was gaining, sorry, it was losing 1 electron and the other one was gaining 3 electrons.
तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड आर डिफरेंट तो फिर रेशियो डिफरेंट होगा ना। बात समझ आइए? यस। तो हमारा पेपर किधर चला गया? अच्छा, इसी के नीचे थे। तो सजेस्ट व्हाई द रेशियो वेरीज। तो metal and non-metals, they might gain and lose different number of electrons. So they lose different number of electrons. आयनिक कंपाउंड्स की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये हमने आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक तो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इस आयनिक लैटिस की और क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये? जी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्ज पार्टिकल्स तो हैं इसमें, लेकिन ये मूव when dissolved in water. ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन या तो मोल्टन या एक्वस, डिसॉल्व्ड इन वाटर। So electricity conduction in molten और aqueous solution, ठीक है। अच्छा, नंबर तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा कि they are soluble in water to some extent, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन they are soluble. अच्छा, next one is strontium oxide is an ionic compound. Draw the diagram which shows its formula, the charges on the ions and the arrangement of the valency electrons. यानी सिर्फ बाहर वाले स्ट्रोंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने लिख दी है पहले ही। तो स्ट्रोंशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 आखिरी 2। तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो फिर वो होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। तो लेट्स ड्रॉ। अच्छा, सो लेट्स, क्या चार्ज होगा स्ट्रोंशियम के ऊपर? +2। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी +2। व्हाई इज इट गोइंग टू बी +2? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। और ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड इज गोइंग टू बी इन ग्रुप 6। तो मतलब ग्रुप 6 का मतलब है, एक तो इसको एक सेकेंड। अच्छा, सो ये क्रॉसेस होने चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप 6 का मतलब है कि इट्स गोइंग टू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। तो वो गेन कितने करेगा स्ट्रोंशियम से? इट्स गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी -2। तो यहाँ पे कोई क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड आर ऑलरेडी इक्वल। ठीक है मुर्तजा अमानुल्लाह? सर हाँ जी। हमने बस आउटर शेल ही दिखानी है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, उसने लिखा हुआ है वैलेंसी ये। ओके सर, ठीक है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वन। वो कह रहे हैं halogens react with other non-metals to form covalent compounds. Draw covalent compounds, ठीक है, remember focus on covalent. तो वो कह रहे हैं draw a diagram which shows the arrangement of the valency electrons in one molecule of the covalent compound arsenic trifluoride. तो the electronic arrangement किस ग्रुप में? arsenic। 5। ग्रुप 5। ठीक है, ग्रुप 5 में। तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3 3 बनाएगा। इसको 3 मतलब। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, ये आर्सेनिक का मैं बस वो देख लूं कि सिंबल क्या है इसका। आर्सेनिक एक यूए पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। अच्छा, सो पता नहीं रोटेट किस तरह होता है, एक सेकेंड। अच्छा, रोटेट, चलिए ठीक है। आर्सेनिक एएस। हाँ एएस है ग्रुप 5 में। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी
It's going to be AS. तो AS होगा. एंड रिमेंबर कि पहले तो उसका वो जल्दी से हम वो कर लेते हैं. AS से 3 बॉन्ड्स बना देना. फ्लोरीन जो है वो एक ही बनाता है. तो AS अपना दूसरा बॉन्ड किसी और फ्लोरीन के साथ बनाएगा, तीसरा किसी और फ्लोरीन के साथ. तो 3 फ्लोरीन चाहिए आपको इसके साथ. तो इसके साथ 3 फ्लोरीन्स ऐड कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया और ये हो गया. सिंबल का ख्याल रखने कि उसके क्रॉस से एक एक बॉन्ड बनेगा. तो आस्ते के कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? बाकी और कितने ड्रॉ करूं? दो. ठीक है, 2 और ड्रॉ करने ताकि 8 पूरे हो जाए. और फ्लोरीन, हर फ्लोरीन को के कितने और इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने? 8 पूरे होने चाहिए ना. तो तो सर 6. तो 6 और ड्रॉ करने. ठीक है, सारों के फिर there would be 6 more electrons. अच्छा, नेक्स्ट इज, और कुछ नहीं पूछा उसने. अच्छा, ये उसने पूछा है, उसने कहा इनमें से कौन सा मेटल है? बताओ मुझे कौन सा मेटल है. इसके तुक्के लगाओ ना कि क्या होगा. मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सर F. अच्छा, F इज अ हाई मेल्ट. ठीक है, हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स. तो F बताओ मेटल होगा. और मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड और लिक्विड में. जी सर. ठीक है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हर स्टेट में करता है, क्योंकि उसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो F तो है. दूसरा बताओ कौन सा सब्सटेंस है F के अलावा? C. सी भी है. अच्छा, C भी है. अच्छा, नेक्स्ट वन. फिर वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन जो है ना, वो रिमेंबर इज अ सिंपल मॉलिक्यूल. N2 होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है. कोवलेंट मॉलिक्यूल, नॉन मेटल है दोनों. तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजन होगा? डी हो सकता है. डी. अच्छा, ठीक है, A. डी हो. हाँ, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो. नाइट्रोजन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है, और बहुत ही लो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. सी के साथ मसला, डी के साथ मसला ये कि डी रूम टेम्परेचर पे ना लिक्विड होगा. रूम टेम्परेचर 25 होता है, तो 25 इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में आ रहा है. तो सही से. अगर वो टेम्परेचर बीच में आए ना, तो वो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के, तो वो लिक्विड होता है. ठीक है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर. तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट्स गोइंग टू बी ए. As the next one, which substance is an ionic solid? Ionic solid. Melting boiling points क्या होंगे उसके? और electric conduction. C. शायद. Remember ionic किधर गया हमारा? Ionic एक था यहाँ पे कहीं बना हुआ डायग्राम. एक सेकेंड. ये Remember ionic compounds होते हैं वो solid state में electricity conduct नहीं करते, क्योंकि charges तो होते हैं उनके पास, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट के अंदर. हमेशा लिक्विड या एक्वा स्टेट के अंदर ये जो आयंस है ना, ये फिर मूव करेंगे इधर उधर, एनर्जेटिक होंगे. ठीक है, तो तब ये चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल होंगे. तो द आंसर टू दिस वन इज कि सॉलिड स्टेट में उसे नहीं करनी चाहिए, लिक्विड स्टेट में उसे करनी चाहिए. तो इट्स गोइंग टू बी बी. बी को देखो, नहीं कर रहा सॉलिड में, और फिर लिक्विड जब वो है ना तो वो कर रहा है. तो द आंसर वुड बी बी. कोई और तो नहीं है जो इसको मैच कर रहा है? और ये बी है ना? हाँ, बी है. इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, अगला पार्ट. व्हिच सब्सटेंस इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये तो भी हमने कर लिया कि स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम कर रहे थे ना, तो जब हम पहला चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर इन दोनों के बीच में ना, तो इन दोनों के बीच में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच वाले टेम्परेचर होते हैं उसमें वो लिक्विड होता है. अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा है
तो वो गैस सारों की स्टेट प्रेडिक्ट करते हैं। 25 कहाँ पे आएगा मुझे बताओ। ये पहला सब्सटेंस ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर ये सब्सटेंस किस फॉर्म में होगा? सर ये -196 से आगे होगा तो लिक्विड। नहीं, इस साइड पे गैस होता है ना। गैस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है तो गैस होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला सब्सटेंस बताओ। सर ये जो सेकंड सब्सटेंस है ये क्या होगा? इसमें सॉलिड हो। क्योंकि 25 जो बन रहा है ना वो टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी नीचे आ रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड। अगला वाला क्या होगा? ये भी सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में आ रहा है 25, लिक्विड। तो ये लिक्विड है, डी आंसर है। और ये दोनों भी सॉलिड्स होंगे क्योंकि 25 मेल्टिंग पॉइंट से भी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो डी। अच्छा, which substance has a giant diamond? कौन इनमें डायमंड की तरह है? डायमंड का क्या होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? ई, मुझे ई। हाँ, डायमंड का बहुत ही हाई होगा, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, तो ई होगा। और इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा, कार्बन अपने चारों बॉन्ड्स बना रहा होता है उसमें। ठीक है, और which two substance could exist as simple इनमें से सिंपल कोवलेंट कौन सा है? सिंपल कोवलेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है कि नहीं करता? सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स करते नहीं करते, उनके पास चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं नहीं। होते। मतलब जितनी भी नहीं मतलब सिर्फ सिंपल कोवेलेंट में चार्जेस होते हैं ना, या पॉजिटिव। नहीं, सिंपल कोवलेंट तो बस वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं ना। कहाँ गए हमारे सिंपल कोवलेंट? उसके अंदर तो ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो दोनों खींच रहे होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बीच में फंसे होते हैं। ठीक है, तो जब ना इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज तो कोई नहीं हुआ ना। तो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है अहमद? ठीक है। तो डज नॉट, ये डी, ये तो खैर जाइंट कोवलेंट हो गया। इसके अंदर मेरे ख्याल से ए और डी होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते ही नहीं है। सिंपल कोवलेंट दे नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए ए और डी होगा आखिरी का। ये समझ आया मुर्तजा? समझ आया? जी सर। सर हाँ जी। मुझे पहले वाले का समझ नहीं है, कैसे उधर एक और भी तो है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई। नहीं, कोवलेंट की तुम बात कर रहे हो, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल नहीं जो नहीं, पहले वाले का ए में तो ई भी आ सकता है। ई इसलिए नहीं क्योंकि वो जायंट कोवलेंट है ना। क्योंकि हाँ सही। सिंपल कोवलेंट जो होता है वो तो एक छोटा मॉलिक्यूल होगा दूसरा मॉलिक्यूल होगा और वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कोई खास नहीं कर रहे होंगे। ये ऑप्शन में सर है भी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करनी ही नहीं है ना, वो तो ई, वो कंफ्यूज हो रहा था ई से, क्योंकि ई में भी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है किसी भी स्टेट में। लेकिन ई जो है वो जायंट है क्योंकि उसके अंदर वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई है। सिंपल कोवलेंट के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? सही जी। चलो ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये कोशिश करना इसमें गो थ्रू करो। ठीक है, एंड जस्ट रिमेंबर कि ये चीज़ अगर सर्च कर लिया करो तो मार्किंग स्कीम भी खुल जाती है। ये लिख के मार्किंग स्कीम सर्च किया करो तो पेपर की मार्किंग स्कीम भी खुल जाएगी। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। ठीक ओके है सर। सर।